अपनी प्रीवियस क्लास में वी हैव डिस्कस द मेयर आइडिया ऑफ द ट्रांसफर इन फेवर ऑफ एन अनबोर्न पर्सन and what property may be transferred and by what ways the property may be transferred in favor of an unborn person. तो आपने कहा कि सर an interest can be created in favor of an unborn person but there must be created a prior interest in favor of some living person, and at the time of the transfer only an absolute interest can be created in favor of unborn person. No life interest can be created in favor of unborn person. So यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि by what maximum period a property may be rendered inalienated. सेक्शन 14 बात करता है by what maximum period a property can be rendered inalienated. Because transfer of property is against the perpetuity. Perpetuity means for a long time, for a long period. शाश्वतता का नियम. For a long time and long period, the property may rendered inalienated. What is the period? What shall be the period for which a property may rendered inalienated? Because the objective of the transfer of property is to transfer the property. Means there must be a circulation. Not only the circulation, there must be an active circulation of the property in the society for which a person can get a property, then the next person will get the property, then third person. So there should not be any perpetuity in the transfers of the property. If the property is vesting in one person, it shall not be vesting in one person, but it must be vested and it must have to be alienated as to the period of the times. ठीक है, कुछ समय के बाद प्रॉपर्टी को अलाइनेट होना चाहिए. अलाइनेशन जरूरी है, अलाइनेशन होना जरूरी है, कंपलसरी है. समझ रहे हैं आप बात? प्रॉपर्टी इन अलाइनेटेड नहीं रह सकती, अनट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नहीं रह सकती. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को जो है एक्टिवली सर्कुलेट किया जाए सोसाइटी में, ताकि सोसाइटी में प्रॉपर्टी का सर्कुलेशन रहे. हमारे जब हमने शुरू की क्लास ली थी, पहली क्लास में हमने बताया था व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी is a transfer of an immovable property between two living persons. दो लिविंग पर्सन के बीच. तो यहां भी यही बात कह रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी इनअलाइनेटेड नहीं रहनी चाहिए, एक्टिव सर्कुलेशन होना चाहिए. सेक्शन 14 is an extended form of section 13. Are you getting my point? Section 13 is a section in which a property is transferred in or interest is created in favor of an unborn person. Making a prior interest or creating a prior interest in some living person. Okay, so what may be the inalienation period under section 13? But it extended to the section 14. What maximum period may be for the inalienation of the property under section 14? तो देखिए सेक्शन 14 में कह रहा है किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है बिटवीन वन और मोर लिविंग पर्सन. सादे से शब्दों में सुन लीजिए, पहले वन और मोर लिविंग पर्सन के फेवर में क्रिएट कर दीजिए, और
अल्टीमेटली अनबोर्न पर्सन के जो एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर जब प्रीसीडिंग इंटरेस्ट डाइज हो, उनका बोर्न होना जरूरी है। तो क्या है, प्रीसीडिंग इंटरेस्ट के फेवर में एक और एक से ज्यादा लिविंग पर्सन के फेवर में कर सकते हैं, और अल्टीमेटली अप टू द माइनॉरिटी ऑफ द अनबोर्न पर्सन। ये हो सकता है मैक्सिमम पीरियड फॉर द इन अलाइनेशन। किस मैक्सिमम पीरियड के लिए प्रॉपर्टी इन अलाइनेटेड रह सकती है, इसीलिए इसके ऊपर मैक्सिमम नो पर्सन कैन होल्ड हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज ग्रेव। कोई भी आदमी अपनी प्रॉपर्टी को जो है कब्र से होल्ड नहीं कर सकता, उसको नहीं चला सकता कि अब मेरे पास, उसके बाद मेरे बेटे के पास, फिर बेटे के बेटे के पास, फिर उसके नहीं। कहीं तो वेस्ट करेगा इंटरेस्ट, जहां वेस्ट करेगा, नाउ ही हैज अ राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू एनी अनदर पर्सन। इसीलिए टीपीए में बहुत एब्सोल्युटली चीजें लिखी गई हैं, वेदर द इंटरेस्ट क्रिएटेड इज एब्सोल्यूट इंटरेस्ट और लाइफ इंटरेस्ट। तो जरा लेक्चर तो तवील हो जाएगा, वरना पढ़िए सेक्शन 14। Section 14. Rule against perpetuity. जी No transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer, and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period, and to whom, if he attains full age, the interest created is to belong. कि समझ तो आया नहीं होगा वैसे, लेकिन फिर भी हम बता दें कहना क्या तो आएगा ही नहीं, तो हम पहले ही कह रहे हैं। तो समझ लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी भी नेगेटिव वे में कहा कि किसी भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया जाएगा लाइफ टाइम से ज्यादा, दो और एक या उससे ज्यादा लिविंग पर्सन की लाइफ टाइम से ज्यादा, और वो पर्सन जिसकी एक पर्सन जो उस टाइम एग्जिस्टेंस में है उसकी माइनॉरिटी से ज्यादा तक इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत गौर से सुनिएगा, ए एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है बी को उसकी लाइफ टाइम के लिए, जो लिविंग है बी। फिर उसी सेम प्रॉपर्टी को कहता है कि ए हैज ट्रांसफर सब प्रॉपर्टी टू ए फॉर हिज लाइफ, टू बी फॉर हिज लाइफ, एंड आफ्टर बी टू सी हिज लाइफ, एंड देन टू ultimately to the son of C, ultimately to the son of C which is unborn। ये हो सकता है मैक्सिमम पीरियड फॉर इन अलाइनेशन। अब जरा पढ़िए, यही बात यहां लिख के कह रहा है कि नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ ऑफ वन बी एंड मोर सी लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। बी और सी हो गए ना, ये समझ आ रहा है कि नहीं हमारे लिस्टेशन के हिसाब से? बी और सी ना, ठीक है। एंड द माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन हु शैल बी इन एग्जिस्टेंस एट द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड। सी का बेटा जो अभी तो ट्रांसफर के टाइम तो नहीं है, लेकिन हु शैल बी इन द एग्जिस्टेंस, कब एग्जिस्टेंस में होगा? एट द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड। ये नेसेसरी एसेंशियल एलिमेंट है prior to the cessation of the interest of the precedent। जो पिछला है उसके मरने से पहले सी के बेटे को जन्म लेना है। तो यहां आप समझिए, ए ने ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी को बी को उसकी लाइफ के लिए, उसके बाद सी को उसकी लाइफ के लिए, और कहा कि अल्टीमेट इंटरेस्ट और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करेगा अनबोर्न पर्सन में जो अभी जन्मा नहीं है,
जो सी का बेटा होगा डी, तो what shall be the maximum period for which the property may render inalienated। तो कहा गया कि प्रॉपर्टी इनअलाइनेटेड रहेगी बी की लाइफ, सी की लाइफ प्लस डी का माइनॉरिटी तक, क्योंकि जिस दिन डी, क्योंकि डी को अब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल गया इसलिए वो ट्रांसफर कर सकता है, जिस दिन डी 18 का हुआ उस दिन से ये इंटरेस्ट वॉइड हो जाएगा, और ऐसा जो इंटरेस्ट होगा डी को अधिकार होगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे, बिकॉज द प्रॉपर्टी इज अल्टीमेटली वेस्टेड इन द डी। हाँ और ना बताइए। यस सर। Yes. सभी बताइए। शगुन, रहनुमा। यस सर। ये से नहीं पूछूंगा, रहनुमा बताना। सर मीन्स आपने जो एग्जाम्पल बताया उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है सर? बेटा उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। यहां समझिए कह रहा क्या है, रूल अगेंस्ट परपेचुटी। परपेचुटी का मतलब होता है दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन नहीं कर लिखा है ना, सकते नो इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ सुनिए, प्रॉपर्टी। आपने कहा, आपके अब्बा ने कहा आप अकेली बेटी हैं अपने अब्बा की, आपके अब्बा ने कहा ये जो मकान है मेरी बेटी का रहेगा, रहनुमा पठान का। उसके बाद रहनुमा पठान के होने वाले बच्चों का होगा, फिर उनके बच्चों का होगा, फिर उनके बच्चों का होगा, फिर उनके, सॉरी ऐसे नहीं। क्यों? हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब था इंटरवाइवस पर्सन के बीच ट्रांसफर होना चाहिए, और एक्टिव सर्कुलेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द सोसाइटी है ऑब्जेक्टिव। तो इन्होंने कहा परपेचुटी नहीं हो सकती, ऐसे ऐसे मामलों में परपेचुटी आप क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं बना सकते इंटरेस्ट। हाँ, कितने दिन तक आप अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते? आपके अब्बा कह सकते हैं मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी एक प्लॉट है, वो प्लॉट रहनुमा का, रहनुमा अपनी लाइफ तक, जब तक रहनुमा जिएगी, उसके बाद रहनुमा के शौहर का, उनकी लाइफ तक, और उसके बाद रहनुमा के अनबोर्न सन का। लेकिन आपके उनके शौहर के जाने से पहले सन का जन्म होना जरूरी है, एग्जिस्टेंस सर। और उसकी जन्म होना, वही एग्जिस्टेंस, और वही जो है, अच्छा ये जन्म भी मैंने एक गलत, एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है इनमें, कंसीव्ड, कंसीव्ड होना जरूरी। तो यहाँ कहा कि उनकी वो लाइफ टाइम उस तक, और जिस दिन वो माइनॉरिटी से मेजोरिटी में आया वो पीरियड, जैसे ही वो मेजर हुआ उसी दिन प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होगा, अब वो वॉइड है, वो चाहे तो ट्रांसफर कर सकता है। अब अब्बा की कंडीशन नहीं चलने वाली, रहनुमा को राइट नहीं था ट्रांसफर करने का, इनके शौहर को नहीं था, लेकिन बच्चे को हो जाएगा जैसे ही वो 18 से पार हुए। मेजॉरिटी अटेंड कर। ओके सर। किसी को डाउट? एनीवन? क्लियर है ना सभी को? यस सर। चलिए अब जल्दी से आ जाइए नेक्स्ट और चलते हैं हम लोग। क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट? देखिए व्हाट इज द पर्पस। अब सपोज, अच्छा अगर हम इसे एक न्यूमेरिक फिगर में समझे कि व्हाट शैल बी द, इस यहाँ मतलब है व्हाट शैल बी द मैक्सिमम रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग। कितने, व्हाट शैल बी द मैक्सिमम रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग, कितने दिन तक आप इनलाइनेटेड रख सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को। तो सपोज करिए हमारे इलस्ट्रेशन में बी की एज एट द डेट ऑफ ट्रांसफर 50 साल है, 50 ईयर, 50 साल, एंड बी लीव्स फॉर 20 ईयर्स। जिस दिन ए ट्रांसफर कर रहा है, तो जरा एज लिख लो, बी की एज 50 साल, सी की एज 30 ईयर। तो मुझे न्यूमेरिकली बताना, अब मुझे बताओ कितना इनलाइनेटेड पीरियड रहेगा।
तजीन नहीं शगुन। कितने दिनों तक इनलाइनेशन नहीं होगा? माइक ऑन कर लीजिए, बताइए जल्दी से। वैभवी बताओ बहुत जल्दी, अब समझ आ जाएगा कि किसको समझ आया किसको नहीं। कितना होगा? बी की एज है 50 साल, सी की एज है 30 साल। चलिए इसमें और आपकी एक हेल्प करते हैं। सपोज सर बी सर लीव, बता। ना बी लीव्स फॉर 20 years, B lives for 20 years and after the death of the bee, after the death of the bee, C lives for 30 years. What shall be the maximum period in which the property may rendered inalienated? आप नहीं, आपको पता है, ये इलिस्ट्रेशन बताया हुआ है आपको। 68। चाचा आपको भी बताया हुआ है। चलो अब इनसे जरा पूछ भी तो ले न्यूमेरिकली कैसे, अब भी कैसे है, कैसे? हाँ बताओ तुलसी। सर 20 इयर्स जो है बी का और 30 इयर्स सी का, दोनों मिलाएंगे और बच्चे का जो 18 इयर्स है दोनों को मिला करके। बहुत शानदार, यही है बिल्कुल। 20 साल बी का, 30 साल सी का और 18 ईयर बेटे का, बच्चे का। इस मैक्सिमम पीरियड तक प्रॉपर्टी इनअलाइनेटेड रह सकती है। समझे आप? वो अच्छा सर एक बार और बताएं सर। हैं, तो फिर ये अंगूठे कैसे चल रहे थे जब से? सर यार आज समझ में नहीं आया सर, दोबारा से। 68 कैसे तुलसी, बता दिए? हाँ बताइए तुलसी। 68 दोबारा से। सर बी का जो 20 इयर्स है और सी का 30 इयर्स और जो बच्चे का 18 इयर्स है, तीनों को ऐड करके। अरे 68। भैया सीधी बात है, हमने कहा कि बी जो है 20 साल तक जिया, तो बी के 20 साल ट्रांसफर से 20 साल जिया ना, तो 20 साल। फिर बी के मरने के बाद सी 30 साल जिया, सी की एज यहाँ हो गई 20 साल, वो 30 साल, ये 80 साल, तो यहाँ हो गया 50 + 30 साल जिया बी के बाद। तो कितना हो गया? 20 + 30 50 + 18 माइनॉरिटी ऑफ एन अनबोर्न पर्सन। क्लियर है बात? ये है मैक्सिमम पीरियड जो प्रॉपर्टी इनअलाइनेटेड रह सकती है। क्लियर है? चलिए जल्दी से अब आ जाइए नेक्स्ट। तो जरा बताइए, इज इट क्लियर? यस यस प्लीज। सर सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने से पहले अगर डी मेजर हो जाए तब क्या होगा? क्या क्या क्या? सी को प्रॉपर्टी मिलने से पहले डी मेजर हो जाए? डी। होगा ही नहीं, क्योंकि वो अनबोर्न के फेवर में है, और ऐसा होगा ही नहीं कि वो मेजर हो जाए। समझ रहे? आप कहना चाह रहे हैं कि सी का बेटा भी जन्म आ गया, सी को प्रॉपर्टी नहीं मिली और डी को मिल गई। हाँ जी। तो अब जैसे ही डी अगर उसके लाइफ टाइम में ही हो गया और उसकी डेथ नहीं हुई, देखिए यहां हम बताना चाह रहे हैं कि इन अलाइनेटेड पीरियड कितना होगा। लेकिन अगर ये भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ जो इंटरेस्ट है वो पहले मिलेगा किसको? सी को, क्योंकि सी की तो लाइफ का इंटरेस्ट मिला हुआ है ना उसको। सी को सी की लाइफ प्लस उसके बाद डी को। जब तक सी जिंदा है तब तक उसके पास तो रहेगा। यस,
और सी क्लियर है मर गया बात? और वो 1 साल का है तब, अरे पैदा ही नहीं हुआ तब। बस चला फिर तो जाएगा वही प्रॉपर्टी, फिर तो वही रिटर्न हो जाएगा। 13 वाला आ जाएगा जो हमने बताया था। लेकिन अगर अम्मा के पास है, कंसीव हो फिर गया अगर है, कंसीव हो गया तो फिर तो रहेगा ही ना, कंसीव हो फिर गया तो। मिलेगा। समझिए आप। नेक्स्ट। यहां तक क्लियर है भाई सबको? अच्छा, इसमें लीडिंग केस है कैडल वर्सेस पाल्मर। ओरिजिन केस पूछते हैं कि वो विच इज द ओरिजिन केस ऑफ सेक्शन 14, कैडल वर्सेस पाल्मर। सर केस नेम फिर से बोल दीजिएगा। कैडल CADLE कैडल वर्सेस पाल्मर। यस प्लीज। सर इसमें फिर अगर ये मतलब बॉर्न होके अगर इसकी डेथ हो जाती तो वही सेक्शन 13 वाला रहेगा ना इसके अंदर। हाँ बिल्कुल। फिर तो देखिए यहाँ सेक्शन 14 और 13 में ये डिफरेंस है। 13 कह रहा है कि प्रॉपर्टी जैसे वो बोर्न होगा वो वेस्ट हो जाएगी। 14 कहता है कि किस मैक्सिमम पीरियड तक प्रॉपर्टी को इनअलाइनेटेड रखा जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि जहां यहाँ 5 भी हो सकते हैं कि पांच पांच की लाइफ ABCDE, इनकी लाइफ प्लस F का माइनॉरिटी, ये भी हो सकता है। समझ रही हैं आप? अब आ जाइए नेक्स्ट। तो लिखेंगे एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट लिखवाएं आपको कि लिख लेंगे? दिए हैं डायरेक्ट में। सबके मैंने दिए शायद। लिखिए जरा, लिखिए फिर सर ट्रांसफर। आपके जैसे ये लिखिए जल्दी से। आपका तो CLE का है ना। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए, देयर मस्ट बी ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए, पहला तो यही है। देयर मस्ट बी, सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है, देयर मस्ट बी क्रिएशन ऑफ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। थर्ड एलिमेंट, there must be creation of prior interest in favor of living person और persons। बात समझ आ रही है कि नहीं? जो हमारा एलिस्टेशन है, जो हमने बात बताई है, उससे मैच हो रही है कि नहीं? बताओ भाई। यस सर। नेक्स्ट there must be existence of unborn person, there must be existence of unborn person before the extension of prior interest, before the extension of EXTINCTION, extinction of prior interest। ये क्या है? इसका क्या मतलब है? समझा नहीं, कोई बताएगा? सर यही तो आपने बताया था अभी। प्रायर बोलिए। इंटरेस्ट कंसीव की होने एग्जिस्टेंस से या खत्म होने से प्रायर पहले अनबॉर्न इंटरेस्ट की पर्सन डेथ की से पहले। एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। अच्छा, अगर अम्मा की कोख में है बच्चा तो तब भी तो तो एग्जिस्टेंस जेस्टेशन में है। पीरियड वो इंक्लूड होगा ना, एक्सटेंस में एग्जिस्टेंस है, हो गया वो। वो आपने बोला ना gestation कंसीव करने period के है। बाद। जेस्टेशन पीरियड मतलब कि वो जुड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। सर नेक्स्ट जी। सर सी के पास जो लाइफ इंटरेस्ट जा रही है और ये अनबॉर्न पर्सन उसके बाद मरने से पहले तो उसको एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए, जन्म ले लेना चाहिए बच्चे का।
नहीं, जन्म नहीं, ये एग्जिस्टेंस कहा है यहाँ। एग्जिस्टेंस का मतलब है वेदर ही इज इन द वूम्ब ऑफ द मदर और ही इज इन द वर्ल्ड। या उसके तो मरने वो से जो है, पहले दोनों में से हाँ कोई होना चाहिए। हाँ, दोनों से कोई होना चाहिए। चाहे तो कंसीव कर गया हो अनबोर्न पर्सन, और या वो बोर्न हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। रूल अगेंस्ट परपेचुटी shall extend to creation of future interest। future interest ही तो क्रिएट कर रहे हैं हम। shall extend to creation of future interest। बस ठीक है, छोड़ दीजिए। अच्छा लिखिए जल्दी से। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूल अगेंस्ट परपेचुटी? objective of rule against perpetuity, RAP, rule against perpetuity। the objective of rule against perpetuity is to ensure, वही जो हमने शुरू में बताया, फ्री एंड फेयर, फ्री एंड एक्टिव सर्कुलेशन ऑफ property for the purposes of trade, commerce और and for the betterment of property itself, and for the betterment of property itself। वो लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया था कि क्या होगा मैक्सिमम पीरियड। क्लियर है? अब आ जाइए एक्सेप्शन क्या क्या है इसके। मतलब कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के पीढ़ी दर पीढ़ी कोई इंटरेस्ट बनाया जा सकता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। कोई ऐसा मामला हो सकता है कि जिस मामले में जो है किसी को जो है हमेशा हमेशा के लिए प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट दे दिया जाता है। क्या ऐसा कोई इंस्टेंस है? तो यस इसको सर। कहते हैं अपवाद। यस प्लीज। क्या क्या है? सर चैरिटी और पब्लिक बेनिफिट के लिए अगर, और एक तो मुस्लिम लॉ पे अप्लाई नहीं होता। चैरिटी ये तो होता ही नहीं चैप्टर 2। चैरिटी और पब्लिक चैरिटी बेनिफिट। चैरिटी फॉर पब्लिक बेनिफिट। अब तजीन ने जो है एक स्कूल बनाया, और स्कूल जो है स्कूल बनाने के बाद इन्होंने लिखा तजीन लॉ कॉलेज। अब ये चली जाए, वो हमेशा तजीन लॉ कॉलेज रहेगा, उसमें एजुकेशन दी जाएगी। इन्होंने हॉस्पिटल बनाया तजीन मेडिकल कॉलेज, तो एजुकेशन दी जाएगी, इलाज किया जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? where a property is transferred for the benefit of the public charity, the property may be vested for the life or for in perpetuity in some particular person। क्लियर है? गिफ्ट ऑफ चैरिटी। ठीक है, जनरली गिफ्ट एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, और जैसे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होता है तो पर्सन हैज अ राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। लेकिन अगर चैरिटेबल पर्पज के लिए है, and interest कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। तो लिखिए गिफ्ट टू चैरिटी सेक्शन 18। सेक्शन 18 where the property is transferred for the benefit of, where the property is transferred for the benefit of public or for the advancement of religious or other purposes, the provision of section 14 will not be applicable। The provision of section 14 will not be applicable। Next, individual contract।
इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट, और पर्सनल कोवेनेंट। आपने जो है कहा एक प्रॉपर्टी जो है ए को ट्रांसफर किया और कहा कि दी प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द फ्रीडम फाइटर्स। जो भी प्रॉपर्टी है हमारी, वी कैन ओनली ट्रांसफर टू द फ्रीडम फाइटर, तो वो खाली फ्रीडम फाइटर्स में ही बिलोंग करेगी, अदरवाइज नहीं, वो इन अलाइनेटेड रहेगी। क्लियर है? सर एक बार दोबारा बता। सपोज आपने एक प्रॉपर्टी जो है फ्रीडम फाइटर को ट्रांसफर की और कहा कि इस प्रॉपर्टी में क्वार्टर आपने बना दिया, आपने कहा कि दिस प्रॉपर्टी इज फॉर द फ्रीडम फाइटर्स, जो या उनके आश्रित जो है, जो उनके एयर है, वो इसमें रहेंगे। अब ए आके रहा, ए के बाद बी रहे, फिर सी रहे, फिर डी रहे। अब उनको जो है ये ऐसा नहीं कि दे कैन ट्रांसफर दी प्रॉपर्टी, दिस इज वेस्ट इन अ पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर्स आए रहे जाएं, आए रहे जाएं, तो वो इनलाइनेट हो सकती है। नेक्स्ट, सपोज, चलिए दूसरा एग्जांपल नहीं, अब नेक्स्ट, परपेचुअल रिन्यूअल ऑफ लीज। परपेचुअल रिन्यूअल ऑफ लीज, 99 ईयर की लीज है, उसके बाद फिर 99 ईयर, तो ये हो सकता है परपेचुअल रिन्यूअल ऑफ लीज। नेक्स्ट, प्रियम्पशन सूट। प्रियम्पशन सूट या रूल ऑफ प्रियम्पशन। प्रियम्पशन के मामले में, प्रियम्पशन मतलब हक शुफा। जब हम फैमिली लॉ पढ़ते हैं मुस्लिम लॉ में कहते हैं हक शुफा, नेबरिंग राइट जिसे कहते हैं, तो नेबरिंग राइट भी प्रिवेल करता है। राम बरन वर्सेस राम मोहित, राम बरन वर्सेस राम मोहित, राम बरन वर्सेस राम मोहित। लिखिए, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट, in this case Supreme Court has held that mere contract for sale of an immovable property, mere contract for sale of immovable property does not create an interest in an immovable property, does not create an interest in immovable property, and therefore the rule cannot apply to the contract like rule of preemption, rule of preemption। सर रिपीट कर दीजिएगा पूरा का पूरा। The लास्ट Supreme पूरा। Court held that a mere contract for sale of immovable property does not create any interest in the immovable property. Therefore, the rule cannot apply to the contract as a rule of preemption। और क्या पढ़ोगे यार इसमें? ठीक है, एंड नेक्स्ट, चार्ज। चार्ज 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 भी जो है किसी प्रॉपर्टी पे कंटिन्यू हो सकता है, परपेचुइटी में बन सकता है।
ठीक है, बिकॉज चार्ज डज नॉट क्रिएट एन इंटरेस्ट ओवर द प्रॉपर्टी। अब आ जाइए सेक्शन 15। क्लियर है बात? सेक्शन 15 आइए जल्दी से, बताइए भाई सेक्शन 15। Section 15. Transfer to a class, some of whom come under Section 13 and 14. If, on a transfer of property, an interest therein is created for the benefit of a class of persons, with the regard to some of whom such interest falls by reason of any of the rules contained in Section 13 and 14, such interest fails in regard to those persons only and not in regard to the whole class. देखिए ए जो है बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट बनाता है, ऐसे लिख लेना, ए एरो बनाना, बी बी को एक पार्ट में करना, दो में, एक ऊपर एक ऐसे। तो ए हैज ट्रांसफर्स a property to B for life and to the unborn children of B if the male will if male person will born or will took the birth, there shall be an absolute interest in favor of male person, and if female took birth, the life interest has to be created in favor of फीमेल। ठीक है, ये ए ने कंडीशन बनाई बी को जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, और कहा कि अगर बी तुम्हारे बेटा हुआ तो संपूर्ण जो है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उनके फेवर में हम बना रहे हैं, और अगर बेटियां हुई या बेटी हुई तो लाइफ इंटरेस्ट। तो सेक्शन 15 कहता है जहां पर कोई इंटरेस्ट किसी क्लास को किया जाता है और क्लास में एक पार्ट इनवैलिड होता है तो दूसरा पार्ट भी इनवैलिड नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? अगर एक पार्ट इनवैलिड है तो दूसरा भी इनवैलिड नहीं होगा। तो यहां पर कह रहा है कि अगर ए ने बी को लाइफ बनाया और उनके बी के जो है एक बेटा और दो बेटियों का जन्म हुआ, तो क्या शेयर मिलेगा बताइए जरा, किसको कितना शेयर मिलेगा? सर बेटा को वो मिल जाएगा शेयर, लेकिन बेटी का तो वैलिड नहीं होगा ना, क्योंकि लाइफ इंटरेस्ट तो बेटी को नहीं दे सकते ना। सर तो 13 फिर और तो 14 बेटे से को भी, कंडीशन हिट कर जाएगी। तो फिर नो सर, बेटे का वैलिड रहेगा सर, तो क्योंकि बेटे को मिलना ही नहीं है ना, क्योंकि बेटे को तो मना कर रहा है, बेटे को तो साफ कह रहा है कि अगर बेटे को जो है खाली जो है अनबॉर्न पर्सन को तो हम लाइफ इंटरेस्ट दे ही नहीं सकते। यस सर। तो बेटे को तो लाइफ इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए। नहीं सर, बेटी को ना दे रहा है लाइफ इंटरेस्ट, बेटा को तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर रहा है ना। तो आप कैसे दो को वो कर रहे हैं? आप दोनों को या तो एब्सोल्यूट दीजिए, एब्सोल्यूट का प्रोविजन है, लाइफ इंटरेस्ट का तो प्रोविजन ही नहीं है। तो सर यही तो कह रहा है इसमें, क्योंकि तो एक क्लास है, और क्लास का अगर पार्ट है तो क्लास के पार्ट में जो है अगर एक क्लास जो है इनवैलिड है तो दूसरी क्लास इनवैलिड नहीं होगी, वो वैलिड ही रहेगी। ये बात किस किस को समझ नहीं आई? तुलसी, यू आर डूइंग वेल, यू आर परफॉर्मिंग वेल, फैंटास्टिकली यू आर डूइंग वेल। जी बताइए, सबको समझ आ गया? अक्षर, रहनुमा, सब, फरहत?
अच्छा पाशा भाई आपको नहीं आएगा? समझ आ गया आपको? अब आ जाइए, पाशा कह रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर ए बी को ट्रांसफर करता है, जो अब्बा है किनके, एक बेटा क्या दो बेटी का, तो ए जो है अभी बच्चे हुए ही नहीं, उनसे पहले जो है बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट बनाता है और कहता है अगर तुम्हारे बेटा हुआ तो तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, बेटियां हुई तो लाइफ इंटरेस्ट, लेकिन उनके एक बेटा दो बेटी हुई। तो कहा कि अगर इनवैलिड पार्ट है किसी एक ग्रुप का, क्योंकि ये बच्चे ग्रुप है, एक इनवैलिड पार्ट है तो दूसरा पार्ट भी इनवैलिड नहीं होगा, और बेटे के जो फेवर का इंटरेस्ट है वो वैलिड रहेगा। दोबारा पढ़ने की जरूरत है क्या सेक्शन 15? नो सर। सुंदर राजन वर्सेस नटराजन का केस है ये, सुंदर राजन वर्सेस नटराजन। बेरेक्ट में एग्जांपल दिया हुआ है, इलिस्ट्रेशन देख सकते हैं आप लोग, दिया है? नो सर, नहीं दिया। हमारे में दिया है। ये राज बजरंग बहादुर सिंह, ये भी है, ये भी इसका केस है, राज बजरंग बहादुर सिंह भी इसका केस है। समझ गए आप? राज बजरंग बहादुर सिंह भी केस है। केस क्या बोले थे? सुंदर सुंदर राजन वर्सेस नटराजन। नेक्स्ट आ जाइए, सेक्शन 16 हमने उस दिन बता दिया था कि अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल हो गया तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट भी फेल हो जाएगा। उसने कहा कि अगर ए लड़का हुआ तो एब्सोल्यूट लड़की हुई तो लाइफ, और अगर कुछ भी नहीं हुआ, इशूलेस हुआ तो डी को चला जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं होता, अनबोर्न के फेवर में एब्सोल्यूट ही करना पड़ेगा, और अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल हो जाएगा तो सब्सिक्वेंट भी फेल हो जाएगा। क्लियर है बात? यस सर। नेक्स्ट आ जाइए, सेक्शन 17 डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। देखिए द पर्पस ऑफ द transferring of the property is to create an interest in favor of some person, and where the property has been transferred to the transferee, the transferee shall have the right to take the incidents of such property। सेक्शन 8 वाला ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफर, वही ऑपरेशन वाला मामला कि अगर मैंने अपना ये रूम और ये पूरा एक फ्लोर हमने अपना आपको बेच दिया, तो अब इसकी कीज, इसके लॉक, इसमें अलमीरा, इसमें जो भी कुछ है वॉट एवर अटैच टू दी, ये सब बिलोंग करता है द ट्रांसफरी से। सेक्शन 17 कहता है कि कोई इंसिडेंट जो है जब क्रिएट कर दिए जाते हैं किसी पर्सन के उसमें, तो वो उसको राइट है। ये जनरल रूल है कि कोई पर्सन अगर किसी को ट्रांसफर करता है, where an interest has been created in favor of the some person, such person shall have the right to enjoy the incident of the properties also, like rent, fruits and benefits out of the land, and any benefits arises out of the land is a right of the transferee to enjoy such property in his manner. He is not bound to give such benefit or the benefits or the rents or anything to the transferor. But section 617 creates an exception to this general rule, that where on a transfer of the property a direction has been made by the transferor to the transferee to accumulate the income of the property in the two ways for the life of the transferor or 18 years, whichever is higher। देखिए डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन कहता है कि किस प्रॉपर्टी में जब एक आदमी दूसरे को ट्रांसफर करता है, तो जो ट्रांसफरी को ट्रांसफर किए उसमें से पैसा लेना। सपोज करिए कि ये मेरा फ्लैट है, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, मैं इस फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, मैंने इसको जो है बी को ट्रांसफर कर दिया
बी को दे दिया, अब बी की गिफ्ट कर दिया सपोज करिए, या हमने जो लिमिटेड इंटरेस्ट दिया। अब हम बी से ये रिक्वायर कर सकते हैं कि जरा इससे जो रेंट आएगा वो आप हमें देंगे। These direction may be made and these direction are not void. Under section 11 and 17 are co-exhaustive and coextensive to each other. Section 11 talks about the absolute transfer, but section 17 talks about the all kinds of the transfer of the property, either by way of lease, either by way of sale, by way of mortgage, by way of exchange, by way of actionable claim, etc. किसी भी वे में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, तो ट्रांसफर जो है एक डायरेक्शन इंपोज कर सकता है और उस डायरेक्शन में वो प्रॉपर्टी की इनकम को एक्यूमुलेट कर सकता है। यस नो, क्लियर है बात? यस सर। 17 पढ़िए। 11 का सर एक्सेप्शन होगा ना 17? जी सर सेक्शन 11 का एक्सेप्शन हुआ ना 17? नहीं 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 नहीं, सेक्शन 11 के को एक्सटेंसिव है, बराबर है। और उसमें भी था, सॉरी एक्सेप्शन था, बिल्कुल को एक्सटेंसिव है। वहां भी ट्रांसफर है, यहाँ भी ट्रांसफर है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन भी क्रिएट करता है 11 का। डायरेक्शन नहीं लगेगी, यहाँ डायरेक्शन बना रहा है। क्या डायरेक्शन है बताइए? Section 17. Direction for accumulation. जी Clause 1. Where the terms of a transfer of property direct that the income arising from the property shall be accumulated either wholly or in part during a period longer than A. the life of the transferor, or B. a period of 18 years from the date of transfer. Such direction, save as hereinafter provided, be void to the बस रुक extent जाइए, to ये बी वर्ड इसलिए कह रहा है, ये कह रहा है लॉन्गर देन, इसका मतलब इससे पहले पहले। वो कह रहा है कि वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी a direction has been made by the transferor to the transferee that from the property an income shall be accumulated during the period of and the life of the transferor or the 18 years from the date of the transfer. The period for the maximum period shall be the whichever is higher, whichever is high, दोनों में से जो ज्यादा होगा, जो मैक्सिमम होगा, चाहे तो लाइफ हो और चाहे 18 साल हो, जो ज्यादा होगा उतने साल तक ट्रांसफर जो है ट्रांसफर की गई प्रॉपर्टी की इनकम ले सकता है, चाहे वो रेंट के थ्रू ले, चाहे वो बेनिफिट से ले, चाहे कुछ और वेज से ले, वो उससे ले सकता है। यस नो? यस सर। सर जी सर सेक्शन 10 में ऐसी कोई भी कंडीशन लगाना जिससे हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं ट्रांसफर को, तो वो वॉइड होती है। तो हम यहाँ उसे रिस्ट्रेन ही तो कर रहे हैं। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेनिंग। आप कहाँ एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट लगा रहे हैं? एब्सोल्यूट रिस्ट्रेनिंग अपॉन द ट्रांसफरिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, ही कैन नॉट फर्दर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। यहाँ फर्दर ट्रांसफर को रिस्ट्रेन नहीं कर रहा है, ये तो कह रहा है कि उससे कुछ इनकम है, किसी वजह से अपने मेंटेनेंस के लिए, बच्चों के मेंटेनेंस के लिए, फॉर द पेमेंट ऑफ द लोन ऑफ द ट्रांसफरर, उस वजह से वो ले रहा है क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे लोन लिया हुआ है उसने। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके सर। पढ़ें जरा। to the और extent to which the period during which the accumulation is directed exceeds the longer of the aforesaid periods, and at the end of such last mentioned period, the property and the income thereof shall be disposed of as if the period during which the accumulation has been directed to be made had elapsed. ठीक है ना, या वो इलेप्स हो जाए जो डायरेक्शन मेड की गई है। अब देखिए सपोज ए हैज ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी फॉर अ पीरियड ऑफ 30 years,
30 साल के लिए ए जो है बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है एंड बी है ए हैज डाइड। अच्छा, इसको ईयर से बताए तो ज्यादा बेहतर लगेगा। ए इन द ईयर ऑफ 2000 हैज ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू बी फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल के लिए। ठीक है। द ट्रांसफरर हैज डाइड इन द ईयर ऑफ 2010। ट्रांसफरर जो है 2010 में मर गया। बताइए कितने मैक्सिमम पीरियड तक उस प्रॉपर्टी से वो इनकम एक्युमुलेट कर सकता है? 18 साल तक। 18 years from the date. 2010 में मरा ना वो, उसी समय तक जब तक लाइफ जिंदा रहा। नहीं नहीं नहीं, तजीन वॉज राइट। पढ़िए जरा। द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर या अ पीरियड ऑफ 18 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द तो ये ट्रांसफर, सर जो ज्यादा हो वो। और जो ज्यादा होगा इनमें। सबको क्लियर है ये बात? बताइए भाई जल्दी से। सर इसमें 18 - 10 हो जाएगा या फिर 18 ही नहीं प्रिवेल बेटा, करेगा? 18 माइनस 10 क्यों होगा? यहाँ कह रहा है कि हम बताना ही ये चाह रहे हैं कि व्हाट शैल बी द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द प्रॉपर्टी द इनकम में बी एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी में कहा द लाइफ ऑफ द ट्रांसफर की लाइफ कब तक थी बताइए जल्दी से? 2010 तक। 2000 में ट्रांसफर किया तो 10 साल। यस सर। लेकिन उसने Yes, नीचे sir. कंडीशन और लिखी या 18 साल, जो भी ज्यादा हो। तो ज्यादा क्या 18 साल की 10 साल? 18 साल। क्लियर है ना बात? चलिए, ए जो है ए हैज, लिख लीजिएगा इलिस्ट्रेशन ऐसे ही। ए हैज ट्रांसफर्ड अ प्रॉपर्टी टू बी फॉर अ पीरियड ऑफ 30 years, फॉर अ पीरियड ऑफ 30 years in the year of, in the year of 1960। 1960 में जो है 30 साल के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है ए बी को and directed to take the income from the property, and A dies in the year of 1985। A जो है 1985 में ए की डेथ हो गई। बताइए कितने साल तक जो है वो इनकम एक्यूमुलेट कर सकता है? 25 साल तक अपनी लाइफ जहाँ मर गया तब तक। समझा नहीं मैं। कोई समझाएगा कैसे? लाइफ टाइम। किसकी लाइफ टाइम? ट्रांसफर की? लाइफ ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर। ये बात क्लियर है ट्रांसफर। सबको? हाँ ना में बताइए जल्दी से, बात क्लियर है कि नहीं? चलिए बस इतना ही जानना चाहते थे हम आप लोगों से। व्हाट आर इट्स एक्सेप्शन? जरा एक्सेप्शन बता दीजिए। क्लॉज 2 में क्या क्या एक्सेप्शन है? Clause 2. This section shall not affect any direction for accumulation for the purpose of 1. The payment of debts of the transferor or any other person taking any interest under the transfer, or 2. The provision of portions for children or remoter issue of the transfer or of any other person taking any interest under the क्या कह transfer. रहा है कि accumulation of the maintenance for accumulation for the maintenance of the children. Next. Third, the preservation or maintenance of the property transferred, and such direction may be made accordingly. ठीक है, तो कह रहा है कि 3 इसके रूल, 3 आर द एक्सेप्शन ऑफ रूल अगेंस्ट एक्यूमुलेशन। रूल अगेंस्ट एक्यूमुलेशन के 3 एक्सेप्शन है। क्या के 3 एक्सेप्शन है? पहला कह रहा है एक्यूमुलेशन फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ द ट्रांसफर। पहला है
एक्यूमुलेशन, लिख लो, एक्यूमुलेशन फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ द ट्रांसफर। ट्रांसफर के ऊपर कोई डेट था, उसको चुकाने के लिए प्रॉपर्टी पर एक्यूमुलेशन लगाया जा सकता है। ठीक है। नंबर 2, एक्यूमुलेशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन of the transfer, and third, perpetual transfer for the benefits, for the public benefit, perpetual transfer for the public benefit सेक्शन 18। क्या क्या है पब्लिक बेनिफिट बताइए जरा। बताइए। Section 18. Transfer in perpetuity for benefit of public. The जी, restrictions in Section 14, 16 and 17 रुक shall not जाइए, apply. जरा इसको सेक्शन अंडरलाइन कर लीजिएगा। पूछा गया है एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन हैज नॉट बीन गिवन एज एन एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 18। 15 है क्या इसमें? No, नो sir. सर। देख लीजिएगा, 14, 16, 18, 17, 14, 16, 17 shall not apply in case of the transfer of property for the benefit of public, advancement of religious knowledge, commerce, health, हम बता चुके। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, आई होप आपको समझ आया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास इज पोस्टपोन टिल फर्दर नोटिफिकेशन। ठीक है, अगर जैसा होगा हम बता देंगे। सर कल अभी क्लास नहीं है? कल नहीं है, होगी तो हम नोटिफाई कर देंगे 1-2 घंटे पहले। कल से क्लास नहीं है अनटिल फर्दर ऑर्डर, फर्दर नोटिफिकेशन। ठीक है, बिजी हो गया, बहुत बिजी हूँ अभी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। एंड थैंक यू वालेकुम सर। सलाम। जूरिस्प्रूडेंस के लिए आप जाइए, ज्वाइन कीजिए, यू विल बी बेनिफिटेड। वेलकम। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज। मिठाई लेके आइएगा आपको, हाँ, कभी तो कुछ खिलाते नहीं है और क्या। तूने तो दिवाली की नहीं खिलाई अब की बार, अरे रहने तुझे दीजिए, क्या ही कहूँ। मेरे ऊपर मत डालो आप तो कितनी बड़ी जगह से आए थे, वहां से करबला से, खिलाए भी नहीं आपने चल, एक वो भी। चलो ठीक है, खिलाएंगे खिलाएंगे। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर।